गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा जो सेशन होने जा रहा है, इन्फ्लुएंसर एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर स्टार्टअप्स एंड ओडीओपी एमएसएमईज। इस सेशन के बारे में हम शुरू में कुछ चर्चा करेंगे। इस सेशन से आप सब क्या समझेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे बीच हैं जो आपसे और बेहद और विस्तार में चर्चा करेंगे। This session will focus on leveraging influencer partnerships and social media platforms to build a strong brand presence and market visibility. It will highlight practical strategies for startups and ODOP MSMEs to reach target audiences cost effectively and drive customer engagement. The discussion will also cover content planning, platform selection, and measuring digital marketing impact. Session outcomes are going to be, we are going to understand how to leverage influencers to build brand trust and reach, learn cost-effective social media strategies for startup and ODOP MSMEs, explore platform-wise content, performance marketing and storytelling techniques, gain insights into local, regional and vernacular marketing for ODOP products, develop an actionable digital marketing roadmap for growth and sales. आज हमारे बीच इन सेशंस के बारे में बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स उपस्थित हुए हैं। मैं आग्रह करूंगी, मैं आप सभी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सर्वप्रथम मिस्टर विजय निहाल चंदानी, please give a huge round of applause for our guest speakers, idea man and founder Tribunities and Make My Payment. Mr. Anubhav Dubey, founder Chai Sutta Bar, please welcome sir. Ms. Niharika Pandey, head creator and shopping partnerships YouTube India. Mr. Mayur Sethi, founder Yellow DG. कृपया जोरदार तालियों के साथ हमारे स्पीकर्स का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं आशा रखती हूँ कि आज के सेशन से आप सभी लोगों को एक बहुत विस्तृत चर्चा के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही आपको मार्गदर्शन भी प्रदान होगा कि किस प्रकार से आप अपने स्टार्टअप्स और अपने इनोवेशंस को आगे ले जा सकते हैं। और जैसे हमारे गेस्ट स्पीकर ने इस फील्ड में कदम रख के चार चांद लगाए हैं, आप भी वो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर विजय निहाल चंदानी। प्लीज़ वेलकम मिस्टर विजय। Please give a huge round of applause for our guest speaker. Idea man, founder Tribunities and Make My Payment. He was featured on the Shark Tank India season 4 while pitching Make My Payment. Okay, slide ये है. This is actually a panel discussion and Niharika ma'am will be the moderator. तो हाँ? I'm the moderator. अच्छा, Mayur is the moderator. So we'll have a panel discussion. यहीं पे बैठेंगे and they will have a informal discussion, right? Thanks. जैसे कि मिहिर जी ने बताया, so we are going to have this panel discussion and I would invite you sir, please start. Thank you. Hello. Hello all. खाना खाया है सबने? पक्का? तो प्लीज अगर पास वाला थोड़ा सा भी डोज ऑफ हो तो यू हैव टू पिंच, ओके? आवाज आएगी चलेगा, एक बार करके दिखाओ। अरे करो, पास वाले को पिंच। सो आई एम श्योर बहुत सारे यूथ हैं यहाँ पर। कौन कौन है जो स्टार्टअप ऑलरेडी कर रहा है, एंटरप्रेन्योर है? वाओ, अमेजिंग। सो लुक्स नाइस। एंड इन्वेस्टर्स भी हैं क्या यहाँ पर? कोई इन्वेस्टर? अच्छा, तो फंडिंग हम बाद में देख लेंगे, नो प्रॉब्लम गाइज। So let me start the proper formal session. Thank you for coming guys and thank you for making it after lunch. We were actually wondering कि शायद हमें कुछ audience नहीं मिलने वाली है, but we have got a good audience, so I'm sure let's start the show. So I've got 3 amazing personalities here. मेरा काम यहाँ पर सिर्फ उनको माइक डायरेक्ट करना और उनके लिए माइक पकड़ना है, तो मेरी तरफ मत देखो। They are the hero of the event and I will try and unveil the other side of them, the stories that you have not heard. There are a lot of things that जो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, शायद नहीं सुन पाए, तो आज हम उन्हीं से सुनेंगे। So सबसे पहले to start with Niharika, she is from YouTube India. She leads the partnership division. I don't know, आप लोग YouTube पे शॉर्ट्स देखते हैं सब लोग? देखते हो राइट? So you don't swipe right or left, right? वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अप एंड डाउन, अमेजिंग। सो शी इज हैप्पी, रेवेन्यू बन रहा है। द बेस्ट पार्ट ऑफ यूट्यूब एंड यूट्यूब शॉर्ट्स
and YouTube as a product is you get to not only know about people from your vicinity, you get to really see a lot of content from across the globe. So thank you, YouTube, and thank you, the team who supports Niharika and everybody at YouTube who is helping us explore this content. So I'll let Niharika talk about what is her primary responsibility. मतलब खाना बनाने से लेकर, वो किचन बोलते हैं ना, जैसे खाना बनाने से लेकर और खाना सर्व करने तक जो पूरी प्रोसेस होती है, मतलब कंटेंट क्रिएशन से लेकर कंटेंट जब डिसमिनेट होता है यूट्यूब पे, उस प्रोसेस के बारे में अगर कुछ ऑडियंस से आप शेयर कर सकें. Hi everyone. I'll try and keep it short. Firstly, it's my first time in Bhopal. It's lovely. I'm so happy to be here. And thank you all कि आप सब आए. Like he said, lunch के बाद का session is always the toughest one. So thank you for supporting it. Very quickly, a little bit about me. I've been working in the media space for a long time. I was just discussing this with Vijay, that I think I started working in media probably around 15, 16 years ago. And I started with a TV company. And you can imagine today now I'm working with tech platform, and the difference that has come in हम सबकी life में, both as a viewer and as somebody who's observing it, has been very vast. Primarily जो मेरा काम है YouTube पे, I work in partnerships, specifically creator partnerships. तो आप सब जो भी creator हैं, wannabe creators, please ask questions and I'll be happy to answer them. But my team supports anybody who wants to build a community on YouTube, right? And how do we kind of make sure कि आपके पास right skills हैं, right tools हैं, can we give you the right information? And over time, as you grow on the platform, how do we make sure that you are monetizing, you are giving us product feedback, कुछ नई चीज़ आ रही है, then how do we make it, come alive for you in the market? So the main thing that we solve for is success, because आपकी success में हमारा success है. So that's primarily what my team does on the YouTube side. Thank you, Niharika. So I'm sure अभी बहुत सारे questions आ गए होंगे mind में. Let's park them for some time. हम लोग हमारी next जो league है उसमें जो हमारे जो star hero हैं, I'm sure everybody knows him, right? क्या नाम है? Yes, थोड़ा जोर से बोलो यार, वो मतलब अनुभव needs energy. अनुभव means energy, right? So sorry. So Anubhav from Chai Sutta Bar, he obviously does not need any introduction, at least within the community. But just to tell you, 0 से 100 की जो कहानी होती है ना, और 0 से 500 की जो कहानी है, वो अनुभव और उसके पार्टनर्स ने मिलकर इंदौर से पूरी करी है. So we should be proud of it, right? Imagine doing it from a tier 2 town. आप सब सोचते होंगे, राइट, कि बड़ी स्टोरीज बड़ी जगह से बनती है, बड़े कॉलेज से निकल के बनती है. कॉलेज. सो लेट्स हियर फ्रॉम अनुभव. थैंक यू मयूर भैया इंट्रोडक्शन के लिए. एंड पता नहीं क्या बोला मेरे को लगता है हर चीज़ में मोटिवेशन ही तो नहीं देना है कहीं. सो लेट मी स्टार्ट विद द मोटिवेशन ओनली. सो क्योंकि मुझे बोला गया था कि थोड़ा सा मोटिवेट कर देना आप वहाँ पे स्टूडेंट को. मैं रीवा से आता हूँ, और रीवा के एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से, बहुत ही छोटे और गरीब परिवार से नहीं आता हूँ. सो आई एम हियर टू स्पिट द फैक्ट्स. मैं आपको कोई भी बोगस मोटिवेशन नहीं दूंगा. आई विल टेक यू टू द जर्नी, थ्रू द जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंड बिकॉज ये स्पेशली इन्फ्लुएंसर एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी है. सो आई विल ट्राई टू नेविगेट यू थ्रू द मार्केटिंग, कैसे हम लोगों ने मार्केटिंग की. सो अगर आपको उस स्पेस पे क्वेश्चन पूछेगा बताऊंगा, बड़े मजे आएंगे उसमें. थैंक यू अनुभव. एंड अनदर स्टार मिस्टर विजय निहाल चंदानी. आई डोंट नो यहाँ से उज्जैन से कौन कौन है? 1 2 3. ओके, डोंट वरी यार, मैं भोपाल से ही हूँ. मतलब आई वाज बोर्न इन भोपाल बट मैं रह उज्जैन में रहा हूँ. हाँ, सो भोपाल से कितने लोग हैं? अमेजिंग. सो विजय ऑब्वियसली डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बट आई एम श्योर शार्क टैंक और यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे आपने विजय को जरूर देखा होगा. देखा है फेस? सॉरी, यू लव हिम. अमेजिंग. सो भाई फैन फॉलोइंग है. सो द बेस्ट पार्ट इज दिस फेस along with lot of content comes on a vertical screen just next to you, and that's how small the world has become. It's because of all these platforms and because of all these content creators and influencers, आज हम उन्हें इतनी पास से फील देख पा रहे हैं, उनके
जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हम सुन पा रहे हैं. सो मैं विजय को बताऊंगा, विजय को बोलूँगा कि इफ़ इन केस यू कैन टॉक अबाउट योर सेल्फ एंड टॉक टू ऑडियंस. Thank you Mayur for the wonderful introduction. I'll definitely try my best कि मैं आज आपको entrepreneurship plus content creation दोनों का एक बहुत अच्छा knowledge दूँ, because दोनों आज जो है entrepreneurs content creators बनना चाह रहे हैं और content creators entrepreneur भी बनना चाह रहे हैं. So I'll definitely try my best. I started my journey in 2016. एक होटल रेवेन्यू मैनेजमेंट स्टार्टअप किया, एंड देन दिस कोविड हैपेंड, स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन, एंड देन गोइंग टू द शार्क टैंक. तो इट्स अ वंडरफुल जर्नी. मैं और भी डिटेल में आपको सब बताऊंगा लेटर ऑन, बट दैट्स इट. सो आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस विजय, एंड मैं चाहूँगा आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन है आपके तो अपने पास पार्क करके रखिए, बट हम अगर 1-to-1 क्वेश्चंस भी करना रहेंगे तो हम करेंगे. सो विजय, कोविड एक प्रॉब्लम थी हमारे वर्ल्ड के लिए, राइट? और आपने वहाँ पर भी बोलते हैं ना वो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बट ही थॉट कि यार कब तक प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा. एंड देन यू स्टार्टेड क्रिएटिंग सम कंटेंट. तो वो जो जर्नी थी 0 से 1000, 1000 से 1000, सॉरी 1000 से 10,000, 10,000 से 1 lakh, and then you started seeing lot of people coming and hearing your thoughts, sharing love on Instagram, on YouTube and lot of other platform. So आपकी जर्नी के बारे में अगर आप how you started from scratch, आपका जो first 30 days का जर्नी था ना, स्ट्रगल वाला पीरियड. यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अभी शायद कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उनको 1500 लाइक्स नहीं आ रहे हैं. तो लेट्स हियर फ्रॉम हिम हाउ ही मैनेज दैट टेंशन, और वो क्या सिचुएशंस थी. So I still remember 22 मार्च और 2020 था, लॉकडाउन हैपेंड. नरेंद्र मोदी जी स्क्रीन पे आए और उन्होंने बोला आज से लॉकडाउन है. एंड देन कुछ दिन के बाद न्यूज़ आने लगी कि अमेजन ले ऑफ दिस फ्यू एम्प्लॉयज़ और ओयो एम्प्लॉयज़ दिस फ्यू एम्प्लॉयज़. और डर तो मेरे मन में भी था, बिकॉज आई एम ऑलरेडी रनिंग अ स्टार्टअप जो कि मैं 2016 से कर रहा हूँ. और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आई एम इनटू अ हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप. अब आपको पता है कि दूसरे बिजनेसेस पे बहुत बाद में इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन मेरे बिजनेस पे बहुत पहले इम्पैक्ट पड़ गया, बिकॉज लोगों ने ट्रैवल ही करना बंद कर दिया था. कोविड हैपेंड एंड देन आई थॉट कि अभी क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. ले ऑफ्स चल ही रहे थे. एंड देन मैंने एक मास्टर क्लास ली थी जहाँ पे मैंने ये सुना था कि यू नो कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स जनरेट कर सकते हो. आजकल जो लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं वो बिजनेस, पैसा, ब्रांड्स को देख के स्टार्ट करते हैं, बट उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ मोनेटाइजेशन होता भी है किसी भी चीज़ से. माई ओनली पर्पस वॉज कि मैं कंटेंट बनाता हूँ, साथ में मेरे ब्रांड को इंटीग्रेट करूँगा और उससे अगर कुछ लीड्स आ जाएगी तो मेरा फिलहाल का काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने मेरी टीम को भी होल्ड पे डाल दिया था. देन सबसे जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने की सोचते हो तो आपके सामने डिफिकल्टीज़ का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है. सबसे पहला था कि स्टेबिलिटी के लिए ट्राइपॉड कहाँ से लेके आना है. तो जस्ट बिकॉज कोविड था तो ट्राइपॉड तो पॉसिबल ही नहीं था लेके आना. तो मैंने देखा जुगाड़ क्या है, तो बिस्लरी की बॉटल को बीच में से काटा, उसको स्टैंड बना के वहाँ से वो फर्स्ट था. देन सेकंड बड़ा जो हर्डल आता है वो आपको लाइट्स का आता है. लाइट्स भी पॉसिबल नहीं थी. तो मेरे ऑफिस में एक छोटी सी खिड़की थी, वहीं पास में मैं खिड़की के पास में बैठ के बनाता था. और मैं कोविड में भी ऑफिस जाता था बिकॉज मेरे घर से ऑफिस पास में ही था. एंड देन दैट कम्स नेक्स्ट, और बड़े हर्डल्स आपके पास आएंगे कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, रिसर्च कैसे करनी है, और सबसे बड़ा हर्डल होता है कैमरा को फेस कैसे करना है, जो आज बहुत सारे लोग नहीं कर पाते. तो मैं थोड़ा रिसर्च करते गया, जुगाड़ करते गया, तो मुझे पता चला कि ठीक है, पहले ना आपको रिसर्च करके फिर पूरी एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है. मतलब दैट्स फाइन, ठीक है. फिर अब कैमरे के जैसे सामने आया तो मेरे मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे. देन आई गॉट टू नो, बिकॉज इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हैज़ सम ग्रेट एल्गोरिदम, कि मुझे पता चला टेलीप्रॉम्प्टर भी कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आप स्क्रीन पे देख के पढ़ के भी बोल सकते हो. Then I used this teleprompter, and then I shot almost 50 to 70 videos before publishing my first video, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब पुश करूं, पब्लिश करूं, ना करूं, अच्छा तो है वीडियो, मैं अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं, मेरा कंटेंट अच्छा है कि नहीं. बट
मैंने फिंगर्स क्रॉस किए और मेरा कंटेंट पोस्ट कर दिया. एंड ट्रस्ट मी ऑनेस्टली दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन, क्योंकि वो एक फर्स्ट इनिशिएटिव होता है जो आप ले लेते हो. बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस देखे. फर्स्ट वीडियो देखा मेरा, स्पेशली जो मुझे फॉलो कर रहे थे, मेरी फैमिली वाले थे, कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बोले बहुत अच्छा वीडियो है. ज़ारा का वो वीडियो था, हाउ हिज फाउंडर बिकेम द फोर्थ रिचेस्ट बिलियनियर, ऐसे करके था. एंड देन आई शॉट सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो. और उस टाइम पे मुकेश अंबानी जी ट्रेंड कर रहे थे, बिकॉज वो बहुत सारे स्टार्टअप्स में इक्विटी और उनका कुछ चल रहा था. वो फोर्थ वीडियो मैंने बनाया, और वो फोर्थ वीडियो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि 11 मिनट का था. बट वो वीडियो 2.5 मिलियन पहुंचा, और मुझे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने बोला व्हाट अ वीडियो, आई मीन व्हाट इनसाइट्स, एंड इट वेंट लाइक रियली वेल, एंड टुडे आई एम हियर. तो अच्छा ही चल रहा है. दिस इज ग्रेट. सो बहुत सारे टेक अवेज और की इंसाइट्स जो हमको यहाँ से मिल रही है, उसमें से सबसे बड़ा जो इंसाइटफुल पॉइंट है वो है कि हमको रुकना नहीं चाहिए. एज ही डिड, राइट? 50 वीडियोस क्रिएट कर लिए, उसके बाद भी रुके नहीं. सोचा अभी रुको, पोस्ट करेंगे. एंड व्हेन ही पोस्टेड, ही डिड नॉट स्टॉप. एक बात और बता दूं, कैन यू गेस इनके कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? So 1 million plus, yes, and around 2 million. Yeah. Around 2 million. And वो फॉलोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आप समझो, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे आपके लिए कस्टमर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इंस्टाग्राम जैसी जो शॉप है वहाँ पे वो फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो इट्स अ प्राउड थिंग, बिकॉज आपके पास 2 मिलियन आई बॉल्स है, एंड दे आर वेटिंग टू कंज्यूम योर कॉन्टेंट. एंड आई फॉरगॉट टू add one more thing. जस्ट बिकॉज वो जो कंटेंट फटा था, 2.5 मिलियंस पहुंचा, मुझे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पूरे इंडिया में पता नहीं कहाँ से लीड्स आई, एंड वी वर नॉट एबल टू हैंडल दैट लीड्स. सो अपने मेन बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ही स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, एंड दैट्स व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट. ऐसे ही एक मार्केटिंग है, और मार्केटिंग एंजल हमारे साथ है, अनुभव. आई डोंट नो, आप लोग एक्चुअली में चाय सुट्टा बार के बारे में तो सभी जानते हैं, राइट? नाउ इमेजिन एक कॉलेज का स्टूडेंट जो कॉलेज ड्रॉप आउट, राइट? हाँ, मतलब फ्रेशर्स में गया था. फ्रेश द बेस्ट पार्ट, फ्रेशर्स में गया था. सो कॉलेज ड्रॉप आउट, एंड देन रियलाइज कि यार मुझे कुछ अपना करना है, एंड स्टार्टेड अ जर्नी जो कभी फैमिली में शायद किसी ने नहीं करी थी. कोई और अगर किसी को बता देते. इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट, कितने टाइम तक आपने अपने पेरेंट्स से छुपाया था? 3 आउटलेट हो गए थे, ये 54 वाला आउटलेट. 1-2 महीने नहीं, 3 आउटलेट खोल दिए खुद ने. पॉजिटिव अर्निंग्स हैं, बट घर वालों को नहीं बताया कि मैंने बिजनेस चालू कर दिया और कॉलेज छोड़ दिया है. अमेजिंग. सो अनुभव इज हियर. अनुभव हैव ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोल, आई वुड से. कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए तो चार्म है ही, बट चाय लवर्स जो होते हैं ना, विच इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन या ज़्यादा, आई वुड से, उनके लिए अनुभव. आई सॉ वीडियो अभी किसी का रिसेंटली, वो भाई रैंडमली हिमाचल प्रदेश से वीडियो बना के अनुभव को थैंक्स बोल रहा है. लाइक इमेजिन हाउ यू आर टचिंग लाइव्स इन वर्ल्ड. दुबई में अनुभव के आउटलेट्स हैं, कनाडा में ही इज बीन डूइंग अमेजिंगली वेल, एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. आई वुड से अनुभव, इफ यू कैन टॉक अबाउट एंड व्हाट यू डिड फॉर दैट वन आउटलेट, फर्स्ट आउटलेट, एंड देन हाउ इट ग्रू. एंड he's the best example of bootstrap marketing, by the way, guys. I don't know कैसे कर लेते हैं लोग बिना पैसे के. मैं तो मार्केटिंग में पैसे ही खर्चा करवाता हूँ, बट bootstrap marketing and lot of real life example is what I would suggest if you can share with them. So पहला आउटलेट यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सारी चीज़ पहले करके देख ली थी, तो आखिरी ये बचा था कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो घर वाले शादी करा देंगे. सो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और पापा को चाहिए था कि लड़का हमारा कलेक्टर वगैरह बन जाए तो अच्छा हो जाएगा. फिर हमको पता ही था कि हम नहीं बन पाएंगे, तो हमने बोला कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ देयर वी कैन स्टार्ट विथ. सो हम लोग को चाय एज अ कमोडिटी, वी डिडंट न्यू दैट इट इज़ द हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस ऑन प्लैनेट आफ्टर वाटर, बट वी न्यू कि यार ये दिखती है, मतलब कि हम लोग को दिखता था कि हर जगह बिकती है. सो हम लोग जहाँ पे थे तो हमने देखा कि एक वहाँ पे एक टी स्टॉल था, तो वो बहुत
ज़्यादा बेचते थे, राम जी टी स्टॉल करके। तो बोले यार ये तो पढ़े लिखे नहीं हैं, बेच रहे हैं हम तो भी चलो 12वीं पास है, तो हम आई गेस कि हम लोग बेटर कर सकते हैं। सो वी थॉट ऑफ एन आइडिया कि हम लोग चलो चाय बेचेंगे। कहाँ बेचेंगे वॉज द सेकेंड क्वेश्चन। तो हम लोग ने सोचा कहाँ बेचें यार। सो हमने जो अपना आउटलेट खोला बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, वो गर्ल्स हॉस्टल के बगल में। सो गर्ल्स हॉस्टल के बगल में इसलिए कि वी थॉट कि अगर हम लोग एज अ प्रोडक्ट अगर वी कैन कैटर टू द विमेन क्राउड एंड मेक देम फील कंफर्टेबल इन आवर आउटलेट, सो लड़के सीधे होते हैं तो अपने आप आ जाएंगे। तो सो वो आ गया। फिर अभी हम लोग था कि हम मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि पापा को नहीं पता था मेरे, क्योंकि पापा को बता सकता था, मतलब कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे बहुत कूल डैड होते हैं, बहुत जैसे आप बहुत अच्छे पापा रहते हैं, हमारे यहाँ पे बाप होते हैं। तो उनको बताना मतलब थोड़ा सा रिस्की था। तो कैसे मार्केटिंग करें लोकली, तो हम लोग पास पैसे वैसे तो थे नहीं। तो दोस्त बहुत थे, क्योंकि मैं हॉस्टलर रहा हूँ, तो दोस्त बहुत थे, सारे वेले थे, बुला लिए। तो खड़े रहते थे दिन भर फ्री चाय के चक्कर में। तो लोगों को लगता था इतनी भीड़ है इस दुकान में, क्या ऐसा बेच रहा है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द सोशल प्रूफ विच अट्रैक्ट अदर पीपल व्हेन दे पास बाय। तो वो हेल्प किया। फिर हम लोग, मैं और आनंद कहीं पे भी जाते थे, किसी भी जगह भी जाते थे, तो भी कीप ऑन एक दूसरे से ज़ोर ज़ोर से बात करते, जैसे कहीं पे यहीं पे बैठे तो ज़ोर ज़ोर से अपने ब्रांड के बारे में सुना, वो चाय सुट्टा भर गया बहुत अच्छा चलता है आपस में, हमको तो कोई पहचानता नहीं था कि हमारा ही है। तो एक बार आदमी सुनेगा तो भूल जाएगा, लेकिन जब वो बार बार सुने तो बोलेगा यार क्या यार लोग बात कर रहे हैं चाय सुट्टा भर, कैसा क्या, चल चल के देखते हैं। सो वो था, वो वैसे करके वो चला, एक आउटलेट चल गया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको भी है। बट इट वॉज नॉट इनफ, वी वॉन्टेड टू एक्सपैंड बिकॉज वी केप्ट द नेम इन अ वे कि हम लोग चाहते थे कि इसको ब्रांड बनाएं, और कोई भी नहीं है भैया एक भी ब्रांड जो मतलब जो अच्छा पुख्ता मजबूत ब्रांड हो, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इंडिया को रिप्रेजेंट करता हो। अब देखिए ना, जितने भी देखिए KFC, मैकडोनल्ड्स, आपका फेवरेट स्टारबक, all are dominated by West. There is no one which is coming from India and representing India on a global platform. Why? Indian cuisine की इतनी respect है, Indian cuisine की इतनी respect है, we are known because of our spices, because of food, but there's no one. So we wanted to become one. तो हमने एक स्टार्टिंग में ना एक नारा बनाया था, उस टाइम पे बड़ा फेमस भी हुआ था। It's been almost a decade now, हम लोग को एक दशक होगा व्यापार करते हुए। So उस टाइम पे एक हमने नारा बनाया था कि हम कुल्हड़ में चाय देते हैं, तो जो भी चाय पिएगा हमारे देश की मिट्टी को चूमेगा। सो वी वांटेड टू मेक श्योर कि एक इंडिया के बाहर हम लोग खोले। अब हमारे पूरे खानदान में से कभी कोई विदेश नहीं गया था। सो वी वर दी, हम सारे, हम जितने पार्टनर तीनों, हम लोग के परिवार में से कभी कोई फॉरेन नहीं गया था। वी वर दी ओनली वन। तो हम लोग का अपॉर्चुनिटी है, आफ्टर स्केलिंग 1, 2, 3 आउटलेट्स, वी गॉट द अपॉर्चुनिटी ओपन द फर्स्ट आउटलेट इन दुबई। 2018 इट वॉज। तो 2018 में जब दुबई गए हम लोग, तो दिमाग काम करना थोड़ा सा बंद हो गया। बहुत सुंदर जगह है, और भी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी है वहाँ पे। सो वी डेविएटेड अ लिटिल, बट वी ये होता है इस एज में, बिकॉज वी आर इन अर्ली 20s। तो वी फोकस किया कि यार यहाँ पे कैसे चलाना है, क्योंकि सारी चीज़ें चेंज थी वहाँ पे। यहाँ पे चाहे, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया से अच्छा है ही नहीं कहीं पे। Sustainability is an issue in India, but ease of doing business, starting and incorporating a company and starting whatever the business you want, it's easy in India comparatively with the other part of the world. So हम लोग जब वहाँ पे गए दुबई में, तो मालूम पड़ा कि अलग अलग कलर की नाइफ है। You don't have to use your hand to wash your hand. You have to push it by knee. Wear cap, different temperatures. कुल्हड़ नहीं अलाउड थे भाई साहब। कुल्हड़ के लिए बोल दिया कि what is this alien product? You have to go to all the checkings, and वहाँ की म्यूनसिपालिटी ने हमारा पहले ही कंटेनर जब्त कर लिया। बोले कि इसमें कितना लेड कंटेंट आप बताइए। अब उसमें उन्हें चेक करने में कहते बोलो 3-4 कुल्हड़ को तोड़ेंगे, मतलब रेशियो ऐसा था। तो बोले हम तो निपटा देंगे यार ये लोग। फिर हम लोग बात किए, फिर नाम का भी इशू आया। सो द पॉइंट इज, सी स्टार्टअप लाइफ इज लाइक एन रोलर कोस्टर राइड। आप कोई भी फंडे में मत जाइए, कोई भी टर्मिनोलॉजी में मत जाइए। लोग टर्मिनोलॉजी में चिपक जाते हैं, बोलने में फैंसी लगता है। धंधे को पुख्ता समझना है, व्यापार करना है, ज़मीन में उतरिए, स्ट्रीट में उतरिए। उससे अच्छा गुरु, उससे अच्छा टीचर कुछ नहीं होता है। मार्केट ही आपको सिखाएगा। टेक द रिस्क, वॉट एवर द रिस्क। कोई अलग से कोई पढ़ के नहीं आता है, कोई भी बिजनेस स्कूल्स में ये चीज़ें नहीं सिखाते होंगे, आई एम श्योर, बिकॉज वी आर हायरिंग वेरी गुड माइंड्स फ्रॉम द वेरी गुड इंस्टीट्यूशन नाउ।
So we know that people are, it is not taught in the school, it is learned in the streets. So try to jump in the street and learn for yourself. Wow, amazing insights. So एक important point है, फादर चाहते थे कोई गवर्नमेंट जॉब कर ले, IAS बन जाए. सो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करा, बट आज गवर्नमेंट ने इनवाइट करके सेशन जरूर डिलीवर करा दिया. सो दैट इज ऑल्सो अ प्राउड फीलिंग, राइट? मल्टीपल टेकअवेज. आई थिंक अनुभव सेड इट राइट. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ. ऐसा नहीं है कॉलेज छोड़ दो सब लोग या स्कूल छोड़ दो, बट द रियल लर्निंग इज गोइंग टू हैपन ऑन द स्ट्रीट, एंड दैट्स व्हाट दीज गाइज डिड, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. I mean, I can see the very young faces here. So मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट एज होती है रिस्क लेने की. बहुत जी जान लगा दीजिए आप लोग. मैं कहीं आप सीनियर भी देख रहा हूँ तो आप लोग भी जान लगा सकते हैं. मतलब आप लोग को तो मैंडेटरी है. क्या रहता है कि एक रिस्क एपेटाइट होती है, एक रिस्क लेने की क्षमता रहती है आप लोगों में अभी कंपेरेटिवली ज़्यादा है. आप रिस्क ले सकते हो. ऐसे नहीं कि पूरे खानदान के पैसा वैसा लगा दिए. कैलकुलेटर रिस्क लीजिए और रिस्क लेके मार्केट में उतारिए, काम करिए. बहुत सॉलिड आप लोग को मार्केट डायरेक्शन देता है. सो वेरी राइटली सेड. एंड फॉर लॉट ऑफ क्रिएटर्स रिस्क मार्केट में जाके लेते हैं. एंड फॉर क्रिएटर्स मार्केट तो पता ही क्या है, राइट? इंस्टाग्राम, यूट्यूब. सो लेट्स हियर फ्रॉम निहारिका एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली में क्या क्या कीड़ा क्या है ये, मतलब क्यों करते हैं कंटेंट क्रिएट, क्यों करें हम, किसी और के लिए क्यों क्रिएट करें, कैसे करें, एंड हाउ YouTube can actually help, and platforms like YouTube, how they are helping content creators. I mean, after those stories, I feel like not as exciting, but I think आजकल I think अगर आप ये question 5 years पहले पूछते कि what is content creation, क्यों करना चाहिए, I think that time nobody knew because it felt like एकदम से आ गया है, TikTok had come into our life and suddenly things had exploded. But I think today, especially अगर आप इस generation में हैं where you've kind of grown up with seeing this over the last 5-6 years, it's almost the way in which आप communicate कर रहे हैं आज. So I don't think most people now need to understand why. I think there is a lot of ownership you get in telling your own story. वो आप अपने लिए बोलें या अपने business के लिए बोलें. Just the fact that you can control that storyline and that narrative, I think उसमें बहुत ज़्यादा उसका impact मिलता है. I think Vijay, your story was amazing कि आपने business के लिए शुरू किया and that took you on a whole other journey. But even today, it's improving everything that you're doing on the business side, right? And I think that's really the core of why content creation matters. It's also become very easy. एक time होता था अगर आपको YouTube channel बनाना है, then you need to have a setup. You need a camera. It needs to look a certain way. Long form के लिए you need to make sure that आपको थोड़ी scripting आती हो. You have to have that kind of indulgence in your life to be able to allow all of that. But today आपकी मोबाइल फोन, that's like your studio, right? आप कहीं पे भी content बना सकते हैं. So that's not the excuse anymore कि आप क्यों बनाएं, क्यों नहीं बनाएं. And like I said, it doesn't have to be, just for the sake of creating content. I think I also meet a lot of people who are like, मुझे बस creator बनना है. I think it's very important to ask why. वो why आपके लिए unique होगा, because everybody has a different journey. It could be because आपको एक personality बनानी है online. That could also be very legitimate. It could also be कि मुझे अपने business के लिए करना है. It could be मुझे story telling बहुत पसंद है, मेरा ये बहुत interesting interest है. Like YouTube में भर के you have such niche channels. There is a guy who make content only around different types of balls, like soccer ball to football to stuff you play with, and that's actually something that you see people following. Or there are lots of accounts that only make rangoli. So जो भी आपका interest है, the why is very unique to you. You must understand that, and uske basis में then you need to start. So first I would say, before you jump into कौन सा camera, कौन सा phone, कैसे शुरू करें, पहले just spend time with yourself to understand what is your reason to get started. And then of course there are many places and people who can help you on that journey. The only other thing I want to call out is Vijay ने again ये बोला था that he made almost how many 15 or 80 pieces of content. Yeah, almost that many pieces of content before he posted the first one. I mean, I really love that because it just shows consistency, right? आपको जो भी करना है, you have to choose to be consistent. Success may come early if you're lucky. Success may come slow. It may come early and then bang tank. It is a very day-to-day journey. Creation and entrepreneurship actually feels very similar because the highs and lows are similar. So if you commit, I think you have to be true to your commitment. तो उसमें आप बस जो भी, and it doesn't have to be कि हर रोज पोस्ट करना है, right? You can actually say that मेरे लिए सिर्फ
thrice a week is possible on short form, या मैं once a month long form करेंगे, like whatever that works for you. But what matters more is that you do it more consistently, like आप ज़्यादा time के लिए वो करें, rather than 2 महीने हर रोज post किया, then you're out because you're like मेरे से हो नहीं पा रहा है. So I think just spend time on the why, and then pick something that works for you, and just commit to yourself. And there are lots of benefits of putting yourself out there. I think in today's day and age of the internet, I think there is no reason to not tell your own story. So yeah. Amazing. So consistency, be curious, and most important, be creative. I think these are the 3 C's that I have learned so far. आप लोगों के मन में बहुत सारे doubts होंगे, right? So let's ask questions. वो अभी मिल जाएंगे, बाद में नहीं मिलेंगे. So, yes, sir. नॉर्मली एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए 50,000 25,000 के इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे फ्रेंचाइजी मॉडल में आपने बहुत सक्सेसफुली कन्वर्ट किया है. तो ये आपकी जर्नी कैसे रही और कैसे आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया? सर आपका क्वेश्चन, सर प्लीज़ बैठ जाइए, मुझे अच्छा नहीं लगे आप खड़े रहेंगे तो. सर इसका बहुत डीप आंसर मैं दे सकता हूँ, टेक्निकल आंसर दे सकता हूँ, बट आई विल ट्राई टू मेक इट गो थ्रू टूवर्ड्स द मार्केटिंग एंगल, क्योंकि सेशन उस चीज़ का है. एक जो आपका क्वेश्चन सर, फ्रेंचाइजी इज रिलेटिवली इजी टू मेक, ये लोगों के अंदर मिथ रहता नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स एन एसेट लाइट मॉडल जिसमें आपका कैपेक्स बहुत कम है और आपका ROI बहुत स्विफ्ट है सर. क्योंकि आप बिकॉज यू आर चार्जिंग अ फ्रेंचाइजी फीस, सेकेंडली यू आर गेटिंग द रॉयल्टी, एंड थर्ड यू आर ऑलरेडी गिविंग प्रोडक्ट टू द पीपल टू कंज्यूम. वो रॉ मटेरियल उसके पैसे भी मिलते हैं, तो आपके पैसे नहीं लगते. बट हैविंग सेड दैट, इट्स ऑल्सो वेरी रिस्की. वी हैव सीन द एग्जाम्पल्स इन द पास्ट. कई लोग ने चालू किया, निपट गए. हाँ, नाम मत लेना कोई भाई, कैमरा चालू है. सो आई गेस it's very difficult to sustain. Obviously it's been a decade सर, एक दशक हो गया हमको चालू किए हुए. 2016 में हमने चालू किया था आउटलेट. SOPs बिल्ड करना पड़ता है सर. हर चीज़ में SOPs और रेप्लिका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. मेक श्योर कि आप अगर किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका पैसा, जीवन की पूंजी लगा देते हैं सर, 20-25 लाख रुपए कोई लगाता है, तो अगर उनका आउटलेट नहीं चलेगा और आपने उनके लिए कुछ नहीं किया तो घर आके कॉलर पकड़ लेगा वो. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको बिजनेस एथिक्स और ये मॉरल्स को आपको जिंदा रख के व्यापार करना चाहिए. नहीं तो लोग माथा देख के तिला लगाते हैं. दैट इज़ नॉट बिजनेस. वो नहीं करना चाहिए. एंड ये इसलिए भी स्केल बहुत ईजिली हो गया सर, थैंक्स टू यूट्यूब एंड थैंक्स टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. हमने सर बीच में क्या किया ना सर, जब हमको मार्केटिंग करनी थी तो हम कैसे मार्केटिंग करें, तो सोशल मीडिया के जितने भी स्टार्स थे बहुत पैसे लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं सर. मैं भी ले लेता हूँ अगर कोई मेरे को. सो बहुत पैसे लेते हैं. तो हम 4-5 लोगों के पास अप्रोच किए कि यार हमारा इंटरव्यू लीजिए, हमारी स्टोरी बहुत अच्छी बताएंगे हम आपको. तो कोई बिना पैसे के तैयार नहीं था. तो हमने क्या किया, कोविड आया. कोविड में सब लोग घर पे बैठे हुए थे, हम लोग के पास भी कोई काम नहीं था. वन ऑफ दी सबसे ज़्यादा हिट इंडस्ट्री में से हम भी एक थे. तो हमने सारे जितने भी हमारे ऑफिस के लड़के थे, हमने सबको दिया, जाके कमेंट करो सबके यहाँ पे, कॉल अनुभव हुए सर, कॉल अनुभव हुए सर. लोग भले ये कौन है भाई अनुभव हुए सर, इतनी डिमांड आ रही है. वो हमारे लड़के थे. तो ऐसे फिर संदीप महेश्वरी सर ने बुला लिया, ऐसे करली टेल्स ने बुला लिया, ऐसे फिर रणबीर इलाहाबादी ने बुला लिया. सो ऐसे चेन होते गई. सो मार्केटिंग के लिए देखिए टूल्स तो दुनिया भर में सबके पास है, आपको तिकड़म लगानी आनी चाहिए. मैं आपको शुद्ध बताता हूँ, टूल्स इज़ एवरीवेयर. सबके पास में फ्री में बटे हुए टूल्स हैं, सबके पास में प्लेटफॉर्म है. देयर इज वन नीच दैट यू हैव टू डेवलप, दैट इज तिकड़म. वो डेवलप करिए आप, उसी से काम होता है. आई गेस मेरे साथ तो काम हुआ. अगर मेरे जैसे आदमी के साथ काम हो सकता है तो आप लोग के साथ, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. ऑब्वियसली संडे को यहाँ पे बैठे हैं, खाने के बाद में सुन रहे हैं, तो आई गेस यू हैव अ ज़ील. सो विल गेट डेफिनेटली गोना डू इट सर. Amazing. Yes. इंस्टाग्राम पे नहीं है और अभी सर का मैंने जब रिसर्च किया तो सर ने भी अच्छा सा बिल्कुल अपनी जो स्टोरी बताई कि उनने 50 टाइम्स वो अटेम्प्ट करे, उसके बाद जो उन्होंने
कई बार आप लोग आते हैं तो आप लोग एक स्टोरी जरूर बता देते हैं, बट उस टाइम पे आपने किस तरीके से सोचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग भी उस तरीके से सोचें कि जिस तरह से आप लोग उस टाइम पे सोच पाते हैं, क्योंकि वो रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो आप और कुछ भी कर सकते थे, बट आपने वही लिया क्योंकि आप कुछ लॉन्ग टर्म विजन दिखा हुआ उसमें। अरे नहीं, बहुत सारी चीज़, पहले तो मैं सोच ही नहीं पा रहा कि तू इंस्टाग्राम में है ही नहीं। मी के कारण नहीं है कि गर्लफ्रेंड के कारण नहीं है? कोई खास रीजन नहीं है। सी मैं बताता हूँ, फेलियर वाली जो बात है, तो इट्स नॉट जस्ट वन टाइम फेलियर। मैंने सीए का अटेम्प्ट किया, मैंने आईएम के लिए अटेंड किया था, आई फेल्ड। आई प्रिपेयर्ड फॉर द यूपीएससी, आई फेल्ड। आई ट्राइड कपल ऑफ थिंग्स बिफोर ऑल्सो भाई, आई फेल्ड। सो इट्स सिंपल मैथ्स, इट्स द गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। आप ज़्यादा ट्राई करिए ना, हाँ, नंबर ऑफ ट्रायल, तो आपके तुक्का लगने, अच्छे लगने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। सो आई गेस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सर ने तो एक बार वो कंटेंट क्रिएशन किया, उसको फिर भी आदमी सोच सकता है कि चाय का बिजनेस इंडिया में लोग कोई ऐसे नहीं है कि रिस्पेक्ट करेंगे, खासकर अगर एजुकेटेड है तो विदाउट लॉन्ग टर्म विजन क्या आप ऐसे ही कैसे कर सकते हैं? सोचने वाली बात है ऐसा, इसलिए नहीं भाई, अब तो देश के प्रधानमंत्री भी चाय वाले हैं। सो ऐसा बात नहीं है कि रिस्पेक्टेड नहीं है। आई गेस स्केलेबिलिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस स्केल पे कर रहे हो। एंड सी सक्सेस स्टोरी तभी होती है, कोई नहीं सुनता आपकी स्टोरी जब तक आप सक्सेस को पा नहीं लेते हो। सो इट्स ऑल अबाउट, इट इज़ रिलेटेड भाई, कि आई गेस के ये ऐसा नहीं कि आपको एंड गोल सबको पता रहता है, इट्स जस्ट द मीडियम। आप आइडेंटिफाई करिए द क्लोजर गोल्स, द स्मॉलर गोल्स, आप उनको ट्राई करिए कॉन्कर करने का, उनको रीच आउट करने का ट्राई करिए। रेस्ट एवरीथिंग एंड फोकस ऑन वन थिंग, एंड रेस्ट एवरीथिंग मीडियम, यू एक्सप्लोर द मीडियम, यू विल रीच आउट टू योर गोल भाई। दैट्स व्हाट आई से। बाकी सबकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग रहती है यार, और इंस्टाग्राम बना ले, किसका सुन के नहीं बना रहा है, मतलब इट्स हाँ यू सो आई गेस भाई, आई मीन दीज गाइज विल try to navigate better than me because I am not a social media वाला So guy. adding to that, before Vijay, adding to that, जैसे अनुभव ने कहा, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म विजन होना ही है। और आजकल कोई बिजनेस खराब नहीं होता। कबाड़ी वाला यार भोपाल का है, कबाड़ी का काम कर रहा है, एंड ही इज़ बीन एबल टू डू ऑलमोस्ट वेरी गुड बिजनेस, राइट? सो बिजनेस खराब नहीं होता, पहली बात, कोई भी बिजनेस। और दूसरी बात, व्हाट ही सेड इज, अगर स्टार्ट करा उसके बाद सोचना, बट स्टार्ट तो करो। आप आपने जो बोला स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि इन्वेंशन करो, इफ यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेंशन करो तो एमएसएमई नहीं, सो स्केलेबिलिटी इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन स्टार्टअप। जैसे अनुभव ने एक फ्रेंचाइज करा, बिजनेस को ऑटोमेट करा, और फिर 500 फ्रेंचाइज कर दिए। सो यस, The primary objective of any business is to sustain first. पहले आप जिंदा रहेंगे तब तो आप आगे की सोचेंगे। तो मुद्दा सर मुद्रा ही है, पहले मैं आपको बताऊं स्पष्ट बात, बाकी सारा चोचला रहता है। सो पहले जेब में पैसे आने चाहिए, और अगर आप सस्टेन कर पाएंगे ना, तब आपके पास में दूसरे ऑप्शन रहेंगे टू एक्सप्लोर, मेड बी एमएसएमई, मेड बी फंडिंग, मेड बी एनीथिंग सर। तो सबसे पहले पैसे आने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज मैंने एक ही स्टार्टअप किया सर, तो मुझे उसी की जानकारी है। बाकी ये विजय भाई की सुन लीजिए, विजय भाई ने भी किया। मैं तो सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था भाई के लिए कि जब आपने कैलकुलेटेड रिस्क बोली, तो जैसे अनुभव भाई ने बताया कि आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, वैसे मैंने भी की थी। चाइना के फ़ोन्स भी मैंने सेल किए थे, आईआईटी की भी तैयारी की, सब कुछ किया, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू स्टार्ट। जब आप स्टार्ट करोगे तो काम हो जाएगा। एंड द बिगेस्ट एसेट यू हैव इज़ योर टाइम, क्योंकि 30s में जब आप आते हो ना, तो आपके पास एक फैमिली होती है, आपके पास बेबीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब अगर मुझे कोई बोलेगा यहाँ पे कि अब आप एक नया स्टार्टअप खोल लो और आप इतना पैसा लगा लो, तो मैं इतना रिस्क नहीं ले पाऊंगा। दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज आई हैव अ फैमिली टू फीड। तो यू आर एट द राइट एज। अगर आपने अभी कर लिया तो आप कर लोगे, और अगर लेट 30s 40s में चले गए ना तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। दैट्स इट। यूट्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कोर बिजनेस। आई गेस मैं बिजनेस के लिए बहुत हो गया भाई, और भी करेंगे, लेकिन अभी एक यूट्यूब का हो जाए, उसके बाद फिर। My question is to Niharika ma'am. So as you said, Instagram followers are important and reaching 1 million or 2 million is definitely important. But does it cash? मतलब पैसा तो YouTube से आएगा,
तो दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है, मेरा क्वेश्चन ये है. आई थिंक बिल्डिंग अ कम्युनिटी इज इंपॉर्टेंट. वहाँ से शुरू करते हैं. वेदर आप कौन से भी प्लेटफॉर्म में आप बिल्ड करें, अगर आप देयर मेनी प्लेटफॉर्म्स फॉर यू टू चूज फ्रॉम, बट आइडियली द मनी फॉलोज द ऑडियंस. ठीक है, तो पहले आप ऑडियंस बिल्ड करिए. एंड व्हाट इज द ऑडियंस अबाउट, व्हाई शुड दे फॉलो यू, गिव देम अ रीजन. बट एक बार आप ऑडियंस को बिल्ड करेंगे एंड उनके साथ आपका कुछ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट, दे अंडरस्टैंड यू, दे फील लाइक, एंड देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक मनी. तो हाउ डज अ क्रिएटर मेक मनी, उसमें वी कैन टॉक सेपरेटली. आई कैन टेल यू वेरी टॉप ऑफ माइंड अभी सबसे पहले होती है ब्रांड डील्स, की ब्रांड्स गो टू क्रिएटर्स एंड से डू अ ब्रांड डील विद मी. प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब गिव यू एड रेवेन्यू. Platforms like YouTube also give you an opportunity for your members or your followers to give you money. So for example, agar aap membership, you can give membership to creators as well. And we also have something called affiliate marketing, jahan pe aap links kar sakte hain apne brands ki, the stuff that you like. And agar koi usse, if they end up buying something, usse aapko ek commission milta hai. So there are many ways in which a creator can monetize, but wo second question hai. पहला है कि आपकी ऑडियंस है या नहीं. अगर आपकी ऑडियंस है, the money will follow the audience. Right, and that's where you will end up making a sustainable career for yourself. Correct. So basically, audience comes from Instagram. No, both. So all platforms are there. Short form is on both, which is on both YouTube, Instagram, wherever. And like I said, you can decide whichever platform works for you. YouTube also has long form. It has multiple ways. It has live streaming. So there are multiple ways in which you can, work multi-format and do it. The only platform that currently shares ad revenue is YouTube. So we see, and like I think. आपने बोला था the main thing I think you said कि business का first goal is to sustain. That's actually what the YouTube as a platform believes in as well. That my job is to make sure that the creator is sustainable. क्योंकि if you are not able to make enough money from the time you're spending on creation, then you will not be able to create in the future, right? So that's why we make sure that ad revenue comes to you. We try and we have almost 10 ways through which a creator can monetize. Because like I said, the success of the creator is success of the platform. So every platform is trying for creators to be successfal. Then of course it's your decision on which one works for you, etc. That is again a very personal conversation. So being a marketer, मैं एक और एक ओपिनियन देता हूँ. अभी पहले ये मत सोचो कि मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर होगा. Be everywhere, because as Anubhav also said and Vijay also said, first customer, that first view is very important, right? So अभी ये मत सोचो कि YouTube और Instagram और whatever. Exactly. You never know. First find your why. आपको क्यों बनाना है? हाँ. आप सिर्फ ऐसा समझ लो, अगर आपके पास 10 लाख लोग होंगे तो आप उनको कुछ ना कुछ बेच सकते हो. तो सिंपली कोई ब्रांड अगर आपको आके बोलेगा कि मेरा ये प्रोडक्ट उन सबको बेच दो, या आपका कोई ऐसा स्टार्टअप हो या कोई ऐसी चीज हो जो आप सबको बेच सकते हो, तो यू कैन मेक insane amount of money. Real examples are there in the market. Perfect. Yes. Hi. Here. फर्स्ट ऑफ ऑल है अनुभव भैया, आप शायद याद नहीं होगा आपको, 2 साल पहले वी हैव मेट 56 पे. आप किसी मेडिकल पे जा रहे थे एंड मैं आपके पास आया था और इट वाज लाइक मैंने बस बोला था कि आई आल्सो वांट टू डू अ स्टार्टअप एंड टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. ओ भाई कांग्रेचुलेशन मेरा भाई. एंड विल सून देयर आल्सो. ओके, माय क्वेश्चन इज विद विजय सर. सर आपने जो अभी स्टार्टिंग में बोला था कि आज कंटेंट क्रिएटर एंटरप्रेन्योर बन रहा है और एंटरप्रेन्योर कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, इसमें गैप को कैसे टारगेट करें? मतलब एज अ फाउंडर मुझे 10 चीज़ें करनी पड़ती है, कोड करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, सेल्स देखना पड़ता है, इसमें मैं कंटेंट क्रिएशन कैसे कर पाऊंगा? देखो, पहली चीज़ तो आप समझो, अगर आज आपने नहीं किया तो आपको फोर्सफुली आगे जाके करना ही पड़ेगा. ठीक है, इतना तो आप कीप इन माइंड. अब इसको कैसे करना है, बेसिकली यू हैव टू बिल्ड अ टीम. उसी के साथ ही कर सकते हो. अगर आप एक सर्टेन लेवल पे भी नहीं पहुंचे हो, ठीक है, बट छोटी छोटी टीम बनाना स्टार्ट करो. थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा. एटलीस्ट इतना कर सकते हो, अगर अपने क्लाइंट्स के साथ मिल रहे हो या जिस बिजनेस में आप हो उसका आपके पास डीप इनसाइट्स होंगे, उनको ही शेयर कर दो यार. इट हार्डली टेक्स लाइक 5-6 मिनट्स. रॉ वीडियो डाल दो. डोंट थिंक सो मच कि मेरे को ऐसा कंटेंट बनाना है कि वो बिल्कुल सबकी आंखों में चला जाए या बिल्कुल मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाए. ऐसा मत सोचो. जितना आपके पास नॉलेज है उतना अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड शेयर करना स्टार्ट कर दो. द सेगमेंट विच आई एम बिल्डिंग राइट नाउ इज अ वुमेन फैशन स्टार्टअप है. द थिंग इज दैट कि वो जितना अट्रैक्टिव कंटेंट नहीं होगा वो उतना वायरल नहीं होगा, और वो मतलब 500-600 व्यूज़ का कोई सेंस नहीं है उस मोमेंट पे. देखो, आप ये कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू वुमेन फैशन ब्रांड, तो आप ये कर सकते हो, आप इनसाइट्स दे सकते हो कि एक मतलब वुमेन को कैसे क्लॉथिंग वेयर करना चाहिए, कपड़े की थोड़ी नॉलेज दे सकते हो, और भी बहुत सारे इनसाइट्स निकल सकते हैं. आई थिंक यू बेटर नो बिकॉज यू आर इनटू दिस बिजनेस. तो आप वो स्टार्ट करो. ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को एक मॉडल को खड़ा करना है और पहन के ही दिखाना है कि भाई दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. ऐसा नहीं है. ओके.
Can I just add one quick Yeah. thing? दो चीज़ें हैं. एक है that I think to what Vijay said. आजकल there is a lot of build in public that is happening. So what does that mean? It means that आप लोगों को दिखा रहे हो the raw, real story of building. So imagine अगर 10 साल पहले he had started showing the story of Chai Sutta Bar. What an interesting journey that would be, because daily आपको पता लगता है कि अच्छा आज outlet दुबई में हुआ, this is what happened. So it's just storytelling. ठीक है, so you don't have to overcomplicate it, but think about building in public, because उसमें क्या होता है ना, जो लोग जुड़ते हैं, even if they are not your end consumers, they just become interested in you and your story, and then they want to follow कि आपका कहाँ गया वो story, right? Were you able to make it? Were you able to actually get there? There is a marketing angle, which is how does it look really good, and can I get the right consumer? वो आपकी marketing अलग है, वो ads हैं. This is the story of your brand and your journey. So I would say think of it slightly differently. They will all converge. एक टाइम पे ये भी आपको will give you the right leads, but don't worry about is it looking aesthetic and can I start talking like why am I building. The first question is, hey, I'm a guy, why am I building a fashion brand? वहीं से अपनी जर्नी आप शुरू करो ना, to explain what's happening. एक तो वो था. Second is, I think sometimes we all overestimate कि बहुत time लगेगा content creation में, because we are used to seeing vloggers and वो अपना हर minute दिखा रहे हैं and you're like I can't do that. If you look at some of the top even podcasters who are founders, they have actually gone on record and they've told us, right, they spend maybe 1 or 2 days a month recording their podcasts, which basically means one Sunday they have put 2-3 blocks back to back where they're calling guests and doing it. Of course they have a team to coordinate the guests and all of that, but उनका खुद का time is just 1 or 2 days a month. So in your case, अगर आप एक Sunday रख लो अपना of a month to say this day I'm just going to make content, just see how that goes. It doesn't have to be daily, because I agree हर रोज नहीं हो पाएगा, and neither are you trying to be a vlogger. But break it in smaller chunks so that आपको भी फिर थोड़ा सा ना, it doesn't feel so intimidating कि कहाँ से शुरू करें, कितना content डालें. Just be like हर Sunday for the next 6-10 months, पूरा 2026, every Sunday I will make content. Let's talk 2027 के January में, and see where it goes, right? I think that's the approach maybe that might help. Okay. Thank you. हेलो सर, माय क्वेश्चन फ्रॉम अनुभव सर. सर कोई भी अपन जैसे स्टार्टअप अपन बिल्ड करते हैं या एक आइडिया आता है, तो सबसे पहले तो एकदम से किक आती है कि हाँ ये मेरे को आइडिया आया है मेरे पास, यूनिक है, या इसके ऊपर मेरे को काम करना है. तो कंपनी स्टार्ट करते हैं और आगे गो ऑन कर जाते हैं, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है लाइफ में जहाँ पे लगता है कि यार थोड़ा सा डर लगता है, चाहे वो फैमिली के उससे आए या फिर रिलेटिव्स के थ्रू आए कि यार अगर नहीं चला तो एक पॉइंट ऑफ टाइम जो ये आता है कि यार डर लगने लगता है. तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ में भी एक पॉइंट ऐसा आया होगा कि जब लगता है कि यार अगर ये नहीं हो पाया तब क्या करेंगे, तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें? भाई सबसे पहले तो किक से बहुत दिक्कत है. किक मतलब अगेन इमोशन. अगर आप व्हेन यू आर इमोशनल यू आर लूजिंग योर प्रैक्टिकलिटी. तो आप अपने प्रोडक्ट से पहली बात तो मोहब्बत मत करिए. आई डू नॉट लाइक टी, मुझे नहीं पसंद है चाय, नहीं पीता हूँ मैं, बट आई नो द फैक्ट दैट इट इज़ द हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेज. चलता है, लोग पीते हैं, तो बेचना है अपने को. सो एक चीज़ वो रही. सेकेंड बात रही कि यू समटाइम लूज योर मोटिवेशन वाइल डूइंग बिकॉज यू आर गेटिंग लॉट ऑफ फेलियर्स अगेन. सो मैं बोला ना कि अगेन मैथ्स आप याद रखिए. It's the game of probability. The more you try, the chances of having success is more. So आप try करिए. आप ये बिल्कुल दिमाग में एकदम बना के रखिए कि ये end है ही नहीं. It's just the beginning. And it's the part of the learning. Failure is not something which tag लग गया आपके में. मुझे तो लगता है कि जो नहीं try कर रहा ना वो गंदा tag है. फट्टू is a बेकार tag. आप डर रहे हैं. Failure is not a big tag, it's a good tag. Because you tried. You have courage to fail. That is the best part भाई. और आप लोग हर लोग ट्राई करिए. Unless until you make it, just make sure. मैं आपको एक बताता हूँ, मैं वैसे इन जनरल बोलता हूँ. सो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था. ये संदीप सर लोग वाला सब शो हो गया था. सोशल मीडिया चक्कर में लोग फोटो खिंचाने लग गए थे. खूब पैसा भी छाप रहे थे हम लोग. फिर सडनली मेरा मन किया कि मैं पायलट बनूंगा, खूब पैसा आएगा, उड़ाएंगे एक आधा शौक के तौर पे. सो आई सडनली डायग्नोज विद टाइप 1 डायबिटीज़. इट्स बेसिकली देखिए एक इंसुलिन पंप है यहाँ पे लेके रखता हूँ, लगाते रहता हूँ, 24 घंटे इंसुलिन चलती है. सो आई गॉट टू नो कि दैट इट इज़ द ओनली क्योर, कि कुछ है ही नहीं इसके अलावा. हमारे पूरे खानदान में कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, बट आई हैव बीन डायग्नोज विद इट. तो अब ऐसे टाइम पे क्या करें कि आप व्यापार छोड़ दें? ऑब्वियसली बहुत परेशान हुआ, बालों झड़ने लगे, टेंशन में मारे. होता है, आफ्टर ऑल हम लोग सब लोग इंसान ही ह्यूमन है.
बट आपका गोल आपसे इतना ज़्यादा जुड़ा रहना चाहिए कि आपको ज़्यादा देर तक बिस्तर पे पड़े नहीं रहने दे. दैट इज़ वॉट मोटिवेशन इज. इट हैज़ टू बी फैक्चुअल. जब मेरी शुगर निकली थी तो मेरे को 16.4 HbA1c थी. अगर किसी को हो पता होगा तो इट इज़ नियरली सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल लोगों के लिए. एंड माई नाउ शुगर इज़ बेटर देन माई डॉक्टर शुगर बिकॉज ऑफ वर्किंग, बिकॉज आई लव वर्किंग. सो उसको सब कुछ छोड़िए, आती रहती चीज़ें. थैंक यू सर. I think no, we've taken a lot of questions. We're running out of time. आप personally ले लेना. See, I think there is a lot of content which is, I would say, pure AI. I mean, I don't think we're there yet, but I think if AI can help you make better content, that's always something you should explore. Because आपकी content production में बहुत help हो सकती है, scripting में help हो सकती है, thumbnails में help हो सकती है. So I think using AI to make content is something that I think most creators are trying. However, if it is only, you know, अभी वो थोड़ा सा fad होता है कभी-कभी where suddenly some AI content is there, but it's not, you know, the question is not how you're making content, it's what are you making. Is that content giving me value or not? If it is pure what we call AI slop, वो क्या होता है, which is कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, 2 बार देख लिया for shock value, but तीसरी बार देखने का भी नहीं मन है, that's not going to work. It's a very short term trend. So I would say rather than thinking कि, you know, is AI the tool or not, I think somebody else also said tool is not the problem. पहले आप सोचो that what is it that I want to make, then can AI help me make that better? So for example, if I'm doing a deep dive on a case study, and usme I can use AI for graphics and that makes my case study better, that's a great use case. But if I'm using AI just to create like a lot of like aggregator type content, jo shayad after a point will not have interest, then long term uska sustainability kam hoga. So I think again, it's really comes down to as a user, and हम सब users हैं, तो अब जब भी आप creator सोचो ना, पहले आप अपने आप को user की तरह सोचो कि आप भी तो consume करते हो, आपको किससे चिढ़ मचती है, like what is it that when you see, like मेरे को नहीं देखना. और so if you think as a user, you obviously want to spend your time in something that feels valuable. कि इसको मैंने 1 घंटा देखा, मुझे लगा इससे कुछ value है, और मैंने इसको 1 घंटा देखा and I'm like what have I done? Why have I wasted 1 hour? So if you're doing more of the latter, it will not work. If you're doing more of the former, it will work. Thank you, Niharika. Nahin, guys, I think we are running out of time because there is another panel. But before we wrap up this session, I want to thank Anubhav, Vijay, and Niharika for finding time and coming all the way to Bhopal and sharing their heart out here. Anybody, if you've got any personal question, they are available here. And I'm sure because of social media, you can always talk to them one-to-one. So they are all available. Again, to summarize, communication is important. Consistency, as everybody have heard from the horses, consistency is very important. Start karo yaar. That's very important. Instagram pe hona zaruri hai. It's not from the point of view ki Instagram zaruri hai, but there are a lot of things happening around. Instagram pe samne dikh sakti hai. YouTube for that matter. Branded promotion. But yeah, start is more important. And for all the fellows and friends here, if you've not started, Anubhav, Vijay, Niharika, as she said, she was in offline media. She comes from a TV background, and now she is into YouTube. So it's important for you to start, and हार नहीं मानना है. That's it. Thank you guys. और LinkedIn में भी मेरे को follow करना है. LinkedIn में भी हम बताना भूल गए, ये social media का था. We ranked 8th India in the LinkedIn profile. Oh, nice. So follow me on LinkedIn as well. Yes. Thank you. Thank you so much. आज के हमारे गेस्ट स्पीकर की सर प्लीज़ टेक योर सीट. आज के हमारे स्पीकर्स की असफलताएं, मुश्किलें, उसके बाद पहली सफलता का स्वाद और कुछ नए शब्द जैसे तिकड़म, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, रिस्क वेयरिंग कैपेसिटी, ऐसी सभी चीज़ें, और साथ ही बहुत सारा मोटिवेशन जो हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस बात को आज हमारे सामने प्रस्तुत किया. साथ ही डॉक्टर कलाम का एक कोट मैं करना चाहूँगी, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही ना आने दे. इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ. आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच राजेश अग्रवाल सर, उप संचालक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग उपस्थित हैं. मैं सर से आग्रह करूँगी सर आप मंच पर आए और हमारे बीच उपस्थित विजय निहाल चंदानी जी का आज के कार्यक्रम के लिए सम्मान करें.
आप सभी हमारे गेस्ट स्पीकर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। अभी हम एक सेल्फी लेंगे तो सब लोग जाओ मत। आदरणीय सर से पुनः निवेदन करूंगी, अनुभव दुबे जी फाउंडर चाय सुट्टा बार के सम्मान हेतु भी सर आप कृपया आएं। जरूर बोलना चाहेंगे, हमारे बच्चे बोल रहे थे पापा इनके साथ सेल्फी जरूर लेना। अब मैं क्या बोलूं। साथ ही हमारे बीच आशुतोष बच्चे बोले थे कि इनके साथ जरूर सेल्फी लेना, मैंने कहा भाई जाता प्रयास करूंगा यार। हमारे बीच आशुतोष गुप्ता सर भी उपस्थित है, महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र रायसेन से। सर से मैं निवेदन करूंगी, हमारे बीच निहारिका पांडे मैम हेड क्रिएटर एंड शॉपिंग पार्टनरशिप यूट्यूब इंडिया के सम्मान हेतु सर से आग्रह करूंगी। साथ ही मैं पुनः आशुतोष गुप्ता सर से आग्रह करूंगी, हमारे बीच मयूर सेठी जी जिन्होंने आज मॉडरेटर के रूप में भी अपनी भूमिका को निभाया है, फाउंडर येलो डीजी, कृपया उनके सम्मान हेतु भी सर आपसे निवेदन है। साथ ही हमारे बीच आज एक विशेष अतिथि उपस्थित हैं, ऑर्टिफाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो अपने पारंपरिक हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं और साथ ही आज हम उनको भी सम्मानित करेंगे। सम्मान हेतु आदरणीय राजेश अग्रवाल सर, उप संचालक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग से निवेदन करूंगी सर आप आए। ऑर्टिफाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो बहुत ही अच्छा कार्य इनोवेशंस पारंपरिक हस्तशिल्प एवं हथकरघा के क्षेत्र में कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी लवली ऑडियंस से आग्रह है कि कृपया इसी हॉल में बने रहें। हम अपना अगला सेशन भी इसी हॉल में ऑर्गेनाइज करेंगे, तो प्लीज़ बी सीटेड एंड आफ्टर 5 मिनट वी विल रिज्यूम द सेशन।